first practice paper, which is available on edudel.nic.in. This is for 12th mathematics. I had also shared a video earlier on how to download these papers from the website. So let us begin with the part A, section 1. The first question is, find the principal value of sine inverse sine 3 pi by 4. Now we know that 3 pi by 4 does not belong to the range of sine inverse, which is minus pi by 2 to pi by 2. Hence, we should convert this 3 pi by 4 to such an angle which lies in the range. So we can write it as sine inverse sine pi minus pi by 4. And this gives us sine inverse of sine pi by 4, because sine pi minus theta is sine theta. And now which gets cancelled, we get pi by 4 as the answer. Right. Now we can come to question number 2. Find the probability of obtaining an even number of each die when a pair of dice is rolled. Okay. So for a pair of dice, an even prime number on each die. So the total outcomes when a pair is rolled is 36. So the only favorable outcome that we need is 2, 2, which is the even prime number. It's 2, 2, just one. So number of elements in this sample space is just 1. And so this implies probability becomes 1 upon 36. Okay, so this becomes the answer. All right. Now the third question. Find the value of x if so sine of this whole angle is 1. We can write 1 as sine of pi by 2. So if we cancel pi by sine from both the sides, what do we get? So supposing, actually we do not cancel it like this. So, but we take sine inverse both sides or something. What are we left with is sine inverse x upon 2 plus cos inverse, sorry, this is x upon 5. Cos inverse 3 upon 5 is equal to pi by 2. And we all know the result. Sine inverse x plus cos inverse x always gives pi by 2. So this implies directly that x is equal to 3. And this becomes the answer. Right. Now, how many arbitrary constants are there in the particular solution of the differential equation? Very simply put, since they are asking the particular solution, so always arbitrary constants are in the general solution. So if they are asking in a particular solution, especially when they have given this number, which means y is equal to 1 when x equal to 0, तो जब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन में तो कांस्टेंट आ जाता है c, जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जब हम ये वैल्यूज डालते हैं, वी गेट अ वैल्यू ऑफ c. ठीक है. सो आर्बिट्ररी यानी कि अननोन कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा, तो हमारे पास आंसर है नो कांस्टेंट. ठीक है. सो वी डू नॉट गेट एनी कांस्टेंट एज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. कोई भी इक्वेशन होगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो सी की वैल्यू होगी, है ना, तो आर्बिट्ररी नहीं है. ठीक है. अब इस पर आ जाते हैं. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर ऑफ कोर्स. तो ऐसा वाला पैराबोला इस शेप में आएगा, वर्टिकल पैराबोला बनेगा. दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर. x एक्सिस के बीच में, पैराबोला के नीचे x एक्सिस से ऊपर, एंड द लाइंस x इक्वल टू -2. सपोज दिस इज -2 एंड सपोज दिस इज द पॉइंट 2.
So we want the area all that we have shaded. So required area, since left hand side are symmetrical, हम right hand side का first quadrant का area निकालेंगे. So 2 multiplied by area of first quadrant. Okay, so area of first quadrant क्या आ जाएगा? 2 multiplied by x की values है 0 से लेके 2 तक, and यहाँ पर y की value रखते हैं which is directly given as x square. So this is very simple, 2 into x cube upon 3, और value हम x की रखेंगे from 0 to 2, and that will give you 16 upon 3. But सिर्फ इतना ही नहीं, हम इसके साथ क्या लिखा करते हैं? स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है जी, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, आप स्क्वायर यूनिट्स भी लिखना है, राइट? नाउ इसका एक चॉइस पार्ट है where we have to give an example of a function which is continuous everywhere but fails to be differentiable. So एक function जो हमने पढ़ा हुआ है which is continuous but not differentiable, वो है मॉड्यूलस फंक्शन. ठीक है, so for example mod x, अगर आप इसको ये 0 पुट कर देंगे तो this function is continuous at x equal to 0 but not differentiable at again x equal to 0. ठीक है, x equal to 0 पे कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. तो फिर अब एक ही फंक्शन जब हमें 2 पॉइंट्स पे चाहिए तो हम ले सकते हैं fx को mod x minus a plus mod x minus b. ठीक है, a and b are any two numbers. आप इंटीजर्स ले सकते हैं, नेचुरल्स ले सकते हैं, आप चाहें तो रियल्स में भी डाल सकते हैं, कोई भी आपको, क्योंकि आपने एग्जाम्पल देना है तो आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, चाहे ऐसे छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको मन में जो भी नंबर आ रहा है x minus 2 कर दीजिए, x plus 7 भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन ले लीजिए. It will be continuous everywhere but will not be differentiable at these 2 points. कौन से 2 points हैं यहाँ पे? x equal to 2 and x equal to minus 7. इन पर ये differentiable नहीं होगा. This will not be differentiable. Okay. Okay. So next question we come to is question number 6. A cross b whole square plus a dot b whole square. This is given as 225. Modulus magnitude of a is 5. We have to find the magnitude of vector b. By simple definition of a cross b, what do we get? Magnitude of a, magnitude of b and sin theta. n cap होता है बच्चों इसके साथ, हमें क्योंकि स्क्वायर करना है तो उसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, स्क्वायर हो गया. अब a डॉट b क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा. अब क्योंकि सबका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर ले लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 225. अब मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1. सो दिस गिव्स यू 225. मैग्नीट्यूड a आपको दिया हुआ है कितना? 5, तो ये हो गया 25. जब स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर आ गया 225 अपॉन 25 मतलब 9, एंड दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 3. तो ये आपका आंसर है. Okay, so magnitude of vector b becomes 3. That is your answer. All right, we will go on to the next question, question number 7. And this says, find the perpendicular distance of this point from the plane. Simple distance formula हम use कर लेंगे बेटा. Simple distance formula ax1 plus b y1 plus c minus d upon under root a square plus b square plus c square. ये a, अब ये x1 y1 z1 तो ये वाले पॉइंट्स हो गए 1 1 and 1. ठीक है, c z1. Yes, right.
तो 1 इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास आ गया 2 + 2 - 1, और ये जो D6 इधर आ गया तो ये हो गया माइनस। ठीक है, और अंडर रूट में डाल देंगे तो ये बन गया 4 and 4, 8 and 1 9, so this is under root 9, and this is -3 upon 3, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, so which gives you 1 as the answer। ठीक है, डिस्टेंस है तो ये हम 1 यूनिट ले लेंगे, आप बेशक 1 यूनिट लिख दीजिए इसके साथ, that will be nice। ठीक है, so ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो प्लीज फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में रखिए। Now we have question number 8. This is find the integrating factor. तो आप पहले तो इस इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, तो dy by dx, यहाँ से x से डिवाइड कर देंगे, -2 upon x into y gives you e raised to power x into x cube upon x। तो राइट हैंड साइड पर हम नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, हम निकाल लेंगे। e raised to power इंटेग्रल, किसकी इंटेग्रल लेनी है, ये y के कोफिशिएंट की विद दिस साइन, दिस इज -2 upon x dx। ठीक है, और ये हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू e raised to power इंटेग्रल -2 बाहर तो 1 upon x, मतलब e raised to power log of x raised to power -2, so which gives you 1 upon x square। ठीक है, so this is the integrating factor। ये हो गया इसका आंसर। प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। All right, so now next we have to find the value of this given integral, and this is find the value from -pi to pi। Now we are reminded of a property -a to a of fx dx। This is equal to 0 if the function is odd, मतलब fx is equal to f of -x। ठीक है, so let us check what is f minus x। This is equal to -x whole cube sin square of -x। अब साइन ऑफ -x तो होता है माइनस साइन x, पर ये स्क्वायर है इस वजह से पॉजिटिव हो गया, तो ये बन गया ये -x³ इंटू साइन स्क्वायर x, और फिर हम इसको लिख सकते हैं दिस इज माइनस ऑफ fx। so therefore fx is an odd function and therefore integral of fx becomes 0, लिमिट्स इसकी -pi से pi। ठीक है, right, we take question number 10 now। नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 का ही एक चॉइस वाला पार्ट है। इफ e raised to power x multiplied by x plus 1 is fx plus c। अब हमें ये पता है कि हम इस x को fx मान लें तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है e raised to power x multiplied by fx plus f dash x, ये पूरे का इंटीग्रल becomes e raised to power x into fx plus c, तो ऑब्वियसली है। ठीक है, सो ऑब्वियसली वो हमसे ये चाह रहे हैं कि हमारा आंसर ये आना चाहिए e raised to power x into x, और उस आंसर को इन्होंने fx बोला है, हमने फॉर्मूले में f पढ़ा है, पर फिलहाल यहाँ आंसर को x बोला है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट डू वी गेट, वी गेट fx is equal to e raised to power x multiplied by x, as simple as that। जस्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। ठीक, now find the slope of the tangent to the curve at x equal to 2। हमें पता है स्लोप क्या होती है,
dy by dx, निकाल लेते हैं dy by dx, we get 3x square minus 1 at x equal to 2, मतलब x की वैल्यू 2 डाल दीजिए. So what do we get dy by dx as? Yes, you are right. We are getting 11 as the answer. Great. Now question number 11. Given that two numbers appearing on throwing two dice are different. तो ये आपको गिवन है कि जब आपने डाइस थ्रो करी है तो वो टू नंबर्स आर डिफरेंट. द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट. जब हम डाइस थ्रो करते हैं हम सबसे पहले ऑप्शन लिखते हैं 1 1, फिर 1 2, दोनों डाइस के अलग अलग नंबर 1 6. फिर अगर फर्स्ट डाइस पे 2 आया, नेक्स्ट पे 1 तो 2 2 एंड सो ऑन वी गो ऑन टू 2 6. इसी तरह से 6 1 से लेके 6 6. पर इसमें जब आप देखते हैं ये 36 आउटकम्स आते हैं. इसमें से रिपीटिंग वाले नंबर्स मतलब जो सेम है वो कौन से हैं, वो हमें नहीं चाहिए. ये 1 1 2 2 एंड सो ऑन टिल 6 6. तो माइनस जो सेम अपीयरिंग नंबर्स हैं वो माइनस कर देंगे. तो दिस इंप्लाइज टोटल आउटकम्स ऑफ सच एन एक्सपेरिमेंट बिकम्स 30. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सम ऑफ नंबर्स appearing on the dice should be 4. So इसका मतलब है क्या सैंपल स्पेस बन जाएगी हमारे पास. डाइस पर अगर फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 3, फिर 2 और 2 की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि डिफरेंट नंबर लेने हैं. दूसरा हमारे पास सिर्फ 3 1 पॉसिबिलिटी आएगा. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2 फेवरेबल अपॉन टोटल 30 मतलब 1 अपॉन 50. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड a into a इनवर्स. अब हमेशा a और a इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बट हमको ये एक बार चेक कर लेना चाहिए. यहाँ पर डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं. दिस इज 2 into 3 6 minus 5 which is 1 not equal to 0. तभी तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. सो a इनवर्स एग्जिस्ट तो करता है, बट अब a into a इनवर्स आएगा क्या, therefore A into A inverse is identity. वो तो आना वही चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, जस्ट ये एक बार चेक कर लेना है कि कहीं डिटर्मिनेंट ये 0 तो नहीं है. अगर वो 0 आ जाएगा तो फिर ये नॉट एग्जिस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. A is a square matrix such that A square is equal to A. Then find the value of m plus n if you are given this condition. All right. So what do we do? This is the condition which is given to us, and we have to find the solution. We have to find the value of m plus n. Okay. Of course, we have to use the fact that a square is equal to a. So let us see, if a square is equal to a, what will be a cube? A cube can be broken as a square into a. Since this a square is a again, and then we again get another a square, we can write it as a. So a square हो, a cube हो, कुछ भी हो, उन सबकी वैल्यू वापस से a आ रही है. ठीक है. So अब ये हम फैक्ट यूज करके इसको ओपन कर लेते हैं. a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, i क्यूब a क्यूब प्लस करते जाएंगे 3i स्क्वायर a प्लस 3a स्क्वायर i माइनस 7a. यहाँ तक तो फॉर्मूला लग गया. होल क्यूब का ब्रैकेट आपने ओपन किया और आगे माइनस 7a दिया हुआ है. ठीक है. इसको जब आप खोलेंगे या और सॉल्व करेंगे तो आपके पास i क्यूब की जगह i ही आ गया. a क्यूब हम अभी देख चुके हैं a प्लस अब ये 3 है, i स्क्वायर इंटू a, आइडेंटिटी का स्क्वायर भी आइडेंटिटी और इंटू a करेंगे तो भी a, प्लस 3a स्क्वायर आइडेंटिटी आप फिर से देख चुके हैं, इसको हमने लिखना है 3a और आगे एक है माइनस 7a. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये a 1 प्लस 3 प्लस 3 और ये माइनस 7.
ठीक है, 3 and 3 6 and 1 7, ये सारा कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया सिर्फ आइडेंटिटी। और राइट हैंड साइड में क्या है, mi प्लस na, ठीक है। आई वाली दोनों मैट्रिसेस को आप एक साइड पे कंबाइन कर दीजिए, व्हाट डू यू गेट, I multiplied by m minus 1 is equal to n multiplied by a. So comparing the coefficients, you get m minus 1 equal to n, and that implies m plus n is equal to 1. Just compare the coefficients. Okay, so this is the value that you want. Find the value of m plus n. That is what you wanted. Write the direction cosines of x-axis is the next question that we need to answer. What are the direction cosines of x-axis? इसमें कुछ भी solve करने वाली बात नहीं है. 1 0 0, that finishes the answer. ठीक है जी. Question number 14. I minus j, ये एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर निकालना है. I का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -1. हाँ, माइनस ही पढ़ेंगे इसको. क्या होता है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट. करना है हमने इस पूरे का होल स्क्वायर, वो ठीक है. और इस अंडर रूट के अंदर i का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, कुल मिला के क्या बन गया? जब अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 2. वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चंस. और अब एक और वेक्टर्स का ही क्वेश्चन है. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ 2i cap minus j cap plus 2k cap on this. So projection of one vector on another vector. We always write projection of a vector on b vector is given by a dot b divided by magnitude of vector b. So if we take the first one as vector a and the second one as vector b, so what do we write? The projection is 2 multiplied by 1, a dot b कर रहे हैं ना, तो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्लस -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन मैग्नीट्यूड निकालेंगे सेकेंड वेक्टर b का, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4. और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 4, ये तो पूरा का पूरा आ गया बेटा 0. वैसे अगर एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पर 0 आए तो उसका मतलब क्या होता है? Can we say something about the two vectors? We can say that, yes, that's correct, that a vector is perpendicular to b vector. अगर हमसे पूछा जाए कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है जी, वो बताइए. क्या, what can you say about vectors a and b? So we can say that vector a is perpendicular to vector b, so it has no projection at all, right? For what value of m is the following a homogeneous differential equation? तो अब देखिए, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन हो जानी चाहिए. आपको पता है होमोजीनियस इक्वेशन में जो भी इनकी पावर्स होती हैं वेरिएबल्स की, x हो y हो, वही दो वेरिएबल्स हैं यहाँ, उनकी सेम पावर होनी चाहिए. एक तरह से ये अंडर रूट ऑफ स्क्वायर्ड है तो 1 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, y की पावर अगर m है इक्वल होनी चाहिए. तो होमोजीनियस इक्वेशन है, इसलिए सारी पावर्स इक्वल होने के लिए क्या है, m should be equal to 1. इसमें कुछ और करना ही नहीं है. This is just a solution by inspection, you can say. ठीक है, just a solution by inspection because you don't have to do anything about it. Next question भी उतना ही सिंपल है, और वो ये है कि ऑर्डर और डिग्री का सम बता दीजिए. इसका, इस इक्वेशन का. अब पहला है dy by dx.
ठीक है, देख लेते हैं इससे बड़े ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल है d2y by dx स्क्वायर। इसका मतलब ऑर्डर तो हमें क्या लिखना होगा, ऑर्डर लिखना होगा हमें 2। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैक्सिमम पावर देखनी होती है। जैसे यहाँ ये होल क्यूब है, इसकी नहीं लेनी, जो मैक्सिमम ऑर्डर हमें मिला उसकी लेनी है। इसकी तो कोई पावर नहीं है, मतलब कि 1 है, तो सीधी सी बात है। तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, सो द सम इज 2 + 1, यानी कि this 3 is the answer. I hope it is very clear, है ना? ठीक है, और अब ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया है। लेट अस सी, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। What is the cosine of the angle which the vector makes with y-axis? हमें पता है कि पहला x-axis के साथ का एंगल होता है, j y-axis के साथ और k z-axis के साथ। ठीक है, सो हमें y-axis के साथ के एंगल का कोसाइन चाहिए। सो डायरेक्शन कोसाइंस l cos अल्फा होता है, m cos बीटा होता है, ये हमें y-axis के साथ वाला एंगल चाहिए, और n होता है cos गामा। तो हाउ डू वी कैलकुलेट m? ये होता है y का j कैप का कोफिशिएंट, यानी कि 1 अपॉन ये सारे कोफिशिएंट्स का होल स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एंड व्हाट डज इट गिव यू? यस, कैलकुलेट क्विकली, राइट? दिस गिव्स यू 1 अपॉन √ this is 2 and 1 3 and 4 √7. So this is the answer, 1 upon √7. I hope things are very clear. So this completes all the 1 mark questions of this practice paper 1.